शुरू करें। पैराडॉक्स यानी कि दो ऑपोजिट चीजों का एक साथ होना जो साथ में नहीं होनी चाहिए, जैसे ब्राइट शैडो, हॉट आइस, विजिबली ट्रांसपेरेंट, न्यू एंड इम्प्रूव्ड। लाइफ में ऐसे कई सारे पैराडॉक्सेस हमें देखने को मिलते हैं, बट समटाइम्स वी चूज नॉट टू सी देम फॉर व्हाट दे आर। एज ह्यूमंस वी आर प्रोग्राम्ड टू कनेक्ट कॉजल लिंक्स। जब मूवी के एंड में सस्पेंस खुलता है, वी टेंड टू कनेक्ट द डॉट्स, द इवेंट्स जो पहले हुए थे। In these cases, some movies turn out to be very phenomenal and some are just, you know. लेकिन ये हमारे आसपास या मूवीज में ही नहीं, हमारे अंदर भी चल सकता है। इवेंट्स दैट अकर ऑपोजिट टू आवर प्लानिंग कॉज mayhem in our heads। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप जब भी कोई बस या ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं, यू आर ऑलवेज लेट, एंड वन डे व्हेन यू डिसाइड एंड आर ऑन टाइम, द ट्रेन्स आर लेट। But this is just an example of a temporary occurrence. There are elements of permanent nature as well. कुछ ऐसी चीजें जिसे ना होते हुए भी एक ह्यूमन नेचर मोल्ड हो जाता है, जैसे फियर, एंगर और स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग के डर से स्टैमर होना, गुस्से की वजह से पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स का हैम्पर होना, स्ट्रेस की वजह से लेजी या इनडिसाइसिव होना। एंड दीज आर सबकॉन्शियसली अनइंटेंडेड बिहेवियर्स, यानी कि ऐसा सब कुछ आपके साथ हो रहा है बट ऐसा आप करना नहीं चाहते हैं। यू सीम टू हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑन थिंग्स एंड येट यू आर ऑन द ड्राइवर सीट बिकॉज पीपल वुडंट स्टॉप ब्लेमिंग यू फॉर स्टैमरिंग और throwing things or being a couch potato. Surely you don't want any of that. And the usual response of the solution is doing the opposite of what you are doing. अगर गुस्सा आ रहा है, then don't get angry. If you are lazy, then get up and do something. It is very easy to say this than doing it. It's like finding your toes by looking up in the sky. It becomes a matter of direction. Dealing with the problems can be like this. अक्सर हम solution तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं just because we are looking at the other way and it is not even our fault. If you think that your intention of finding the solution is right and you just need to be looking in some other direction, you can turn yourself to a very basic idea and concept called as the paradoxical intention and use it to implement in your lives and find your way. Now the concept covers a lot of things and आगे आने वाले एपिसोड में हम इसको डिटेल में भी कवर करेंगे, बट आज के एपिसोड के लिए all you can remember is the idea is to do the opposite of what you feel like doing. For example, ड्रॉपिंग ज्ञान। एग्जामिनेशन डे। अगर ऐसा आपके साथ नहीं भी हुआ है तो भी आई एम श्योर यू नो एटलीस्ट वन पर्सन जिसने आपको आके ये जरूर कहा होगा कि यार आई हैव लिटरली फॉरगॉटन एवरीथिंग दैट आई हैव स्टडीड। इट्स नॉट एवरीथिंग बट दैट्स व्हाट पीपल से, राइट, कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। But eventually they do fine, right? Everything goes well. In most cases, what happens is that the confidence usually shatters. But that one singular point that works in these cases is ये बात मान लेना कि यार फेल हुए तो हुए and still appear for the exam. This is paradoxical intention. Usually when we know that we are going to fail, we don't even try, right? But ये concept ऐसा नहीं कहता. According to this style, we must do what we fear and do exactly opposite of what we are feeling like doing. हमारे intention का bang opposite. तो इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पैराडॉक्सिकल इंटेंशन से 3 की स्टेप्स जो हो सकता है आपको आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने में आपकी कुछ हेल्प कर सके। लेट्स बिगिन। Number 1, identify the fear. Not everything is the cause of our fear. Some things are. It is very important कि हम वो fear, वो symptom identify करें जो हमारी habit या एक generic response बन चुकी है, जैसे हर बात पे गुस्सा आना, even on things that don't require that kind of a response. Step 2, ease into the result. Like I said before, जब आप एग्जाम में डिसाइड कर ही लेते हैं कि जब फेल होंगे तो देखा जाएगा, it sort of becomes a confidence booster for someone. रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, when you are okay with any of the outcomes, you have your mind clear and away from the fear. Step 3, iterate and repeat. It's true. ये रामबाण इलाज नहीं है। हो सकता है that आपके एंजाइटी हैंडलिंग इश्यूज का सोल्यूशन आपको एक ही दिन में ना मिले, बट एक छोटा सा इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। When you repeat the process day by day, हो सकता है that because of little improvements, you eventually reach the goal where you want to reach. Let's say you want to do public speaking and आप आज सिर्फ 5 लोगों के साथ बात करने में कंफर्टेबल है, tomorrow it could be 10, 20, 30 or even hundreds. Repeat the process. इसी बात के साथ चलते हैं आज के मेंटल नोट पर। आज का मेंटल नोट इज प्रीटी सिंपल। लेट्स डू ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी फियर। इस वीक लेट्स ट्राई दिस आउट, इवन इफ इट इज किसी कॉकरोच को हाथ में उठाना हो। इफ यू डू ट्राई समथिंग एंड इफ यू डू गेट ओवर इट, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने क्या किया।
आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. इफ यू और समवन यू नो नीड्स हेल्प रिगार्डिंग एंजाइटी और डिप्रेशन, दरवाजा खोलो हैज अ रीच आउट फॉर्म जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल बिकॉज यू डोंट नो हु माइट नीड इट एट व्हाट टाइम. मेरा नाम है प्रथमेश. साइनिंग ऑफ. खुश रहो, कीप स्माइलिंग और सुनो दरवाजा खोलो. Please be kind to the person next to you. Thank you.